ओके, चलो स्टार्ट करें सर. So we have already understood a little bit of introduction of cost audit. I told you the history and background of the cost audit. And the first thing, as I told you, ki you should know each and every topic which is there in your Companies Act. So Companies Act में section number 148 is a prime section which is completely dedicated towards the which audit? Cost audit. हमने start किया था कि cost audit is not a which audit? Statutory audit. Rather, it is in addition to statutory. So every industry on which the cost audit is required, there are two types of audit will take place on that industry. One is obviously the financial audit, that is the financial statements audit. Plus, if they are meeting some turnover criteria, if they're meeting which criteria, तो उनके ऊपर cost audit भी होगा. First of all, तो you have to understand one fact that कि cost audit does not mean that it has to happen. Cost audit is something which is turnover based audit. अगर एक साल आपका टर्नओवर आता है तो कॉस्ट ऑडिट होगा. अगर नेक्स्ट ईयर इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रीच योर टर्नओवर द लिमिट, cost audit will not take place. That's why the point number 3 takes place. What is the point number 3? Read. Cost audit is not a which audit? Regular audit. तो cost audit is not a regular audit. ये regular audit है ही नहीं. Neither it is regular audit, nor it is periodical audit, nor it is what? Yearly audit. तो हो सकता है कि वाइजैक स्टील प्लांट पे 1 year cost audit is happening, second year may not be happening, third year happening, fourth year happening, fifth year happening, sixth year may not be happening. So it's yearly testing we have to do कि whether the cost audit is required or not. And most importantly, what are the industries which are covered in the cost audit? Manufacturing, production, processing, mining, extraction and assembling. ये इंडस्ट्रीज क्यों कवर्ड हुई? क्योंकि द व्हाट इज अ कॉमन थिंग इन दीज इंडस्ट्रीज? द कॉमन थिंग इज यूज ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर. उसके बाद हु कैन डू द कॉस्ट ऑडिट? दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. 1965 onwards this word was added. What is the word? Only practicing CMA can now do the which audit? Cost audit, right? Now there are some other things also you need to know in the cost audit, so let's start with that only. Now let's understand the fifth point. So what is the fifth point? Relating to cost audit. अब इसको ध्यान से देखना. There are total 6 rules under CRA rules 2014. Total how many rules we have? 6 rules. देखो पहले तो ये some of the facts you need to understand. There are 24 cost accounting standards. There are 4 cost auditing and assurance standards. There are 6 CRA rules and there are 4 CRA forms. Are you getting the point? So today we'll be winding up section number 148 with 2 rules and 4 forms. So what about the remaining 4 rules out of 6? Remaining 4 rules के लिए अपना एक separate topic है. Cost Records and Audit Rules 2014. So there will again repeat all the 2 rules which we are going to cover here. So here total how many rules are there in the CRA rules? 6. Out of which there are 2 rules which we have to learn. One is called rule number 3 and one is called rule number 4. So total 2 rules we have to understand, rule number 3 and rule number 4. अब मैं तुम्हें इसमें difference बताता हूँ कि what is rule number 3. Rule number 3 is on cost records. मतलब ये रूल क्या बताता है कि when the cost records are compulsory. I'm not saying cost audit. I'm using the word cost record. कि आपको cost records कब से बनाने शुरू करने हैं. That is what rule number 3 tells. And rule number 4 is on cost audit rule. It tells you that कि when cost audit is required. Now first misconception which you have to remove is कि just because you have started maintaining the cost records does not mean that cost audit is applicable. तो cost record का turnover limit is different. Cost audit का turnover limit is different. Are you getting the point? पहले अपन rule 3 को finish करते हैं. What is rule 3? ये क्या बोलता है कि if you are again manufacturing, mining, assembling, production, processing and extraction company which is making the use of 2 things, raw material plus labor, तो आपका अगर टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर
is greater than equals to 35 crores, तो आपको cost records prepare करना mandatory है from that year onwards. Are you getting the point? Once you have started preparing the cost records, say for example the next year again your limit does not cross 35 crores, it does not mean that you will stop preparing the cost records. Cost records rules once applicable, always applicable. तो say for example next year मेरा turnover है 30 crores, so that doesn't mean that कि last year के cost records I will shut down or throw it out. So once the cost records you have started preparing, you have to continue the cost records. So what is the limit for the cost records, everyone? 35 crores or more का turnover should be there if you want to prepare the which records? Cost records. Next point. उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? कॉस्ट ऑडिट रूल्स. अब इसको समझने के लिए पहले अपने को थोड़ा मटेरियल में देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑडिट बेसिकली होता क्या है. तो आई विल टेक यू टू द सम ऑफ द नेक्स्ट थिंग. अभी देखो यहाँ पे टोटल देखो. व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 एज अमेंडेड. ये कब अमेंड हुए थे? 2019 में. तो टोटल हाउ मेनी रूल्स? आई टोल्ड यू 6 रूल्स. पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इसमें जो रूल 1 है वो किसके बारे में है? रूल 1 अपने को बताता है कि कॉस्ट ऑडिट रूल्स आए कब से, फ्रॉम विच डेट द कॉस्ट ऑडिट रूल्स गॉट कमेंस्ड. रूल नंबर 2 इज ऑल अबाउट व्हाट? डेफिनेशंस, व्हिच वी विल डू व्हेन दिस चैप्टर विल स्टार्ट. रूल नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड. अब पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Two categories of the sectors have to start preparing the which records? Cost records. Abhi, if you remember, I made you write the year-wise information. Can you please see in the 1965 to 2008 में how many industries? 44. But फिर मैंने बताया था कि 2014 में वो इंडस्ट्री रिड्यूस होके कितना हो गया था? 39. अब अपने को क्या करना है? अपने को 39 इंडस्ट्री को दो सेक्टर्स में डिवाइड करना है. One is regulated sector and one is unregulated. इसे regulated sector क्यों बोलते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इसके प्राइसेस को रेगुलेट करती है और इनके रेगुलेटर्स गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. जैसे पेट्रोलियम, मैं तुम्हें इजी वे बता देता हूं. स्टेप फादर एंड डॉटर, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड सेक्टर. स्टेप एफडी. व्हाट इज स्टेप एफडी? स्टेप फादर एंड डॉटर, जिसमें एस स्टैंड्स फॉर शुगर इंडस्ट्री. व्हाट इज एस स्टैंड्स फॉर? Sugar industry. T stands for telecom industry. E stands for electricity industry, means power supply industry. P stands for pharma industry. F stands for fertilizers and drugs. And अपना S stands for stepfather and daughter. D stands for drugs and pharma. तो ये 6 सेक्टर है out of 39 which are known as regulated sector. So what about the remaining 33? They are known as what? Unregulated sector. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? आई एम नॉट सेइंग दैट अनरेगुलेटेड सेक्टर डज नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट वॉचेस देम आल्सो, बट गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर दैट मच हाउ मच द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द regulated sector. So now see two categories. One is which sector? Regulated, and one is what? Unregulated sectors have been what? Retained and general threshold of turnover of how much? तो अगर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, तो योर टर्नओवर हैज टू बी 35 crores और मोर. हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कंपनीज कवर्ड. Micro enterprises or small enterprises which are under MSME Act. Anybody knows what is this act? It is known as Micro, Small, Medium Enterprises Development Act. 2000 have been taken out of the preview. It means if you are an SME, either you are under regulated sector SME or you are under unregulated sector SME, you don't have to prepare the which records? Cost records. Did you get the point? So who is completely out of the scope? SMEs are out of the scope. So either you are regulated or unregulated. तो ये रहा अपना diagrammatic representation. Applicability of maintenance of cost records. Either you are a domestic company or a foreign company. पहले बताना, what do you mean by foreign company? Which is incorporated outside India but having a place of business in India. मतलब अगर एक कोई भी फॉरेन कंपनी जिसका यूएस में इनकॉर्पोरेशन हुआ है बट दे आर आल्सो डूइंग द ऑपरेशंस इन इंडिया, मेकिंग यूज ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर, देन फॉर देम आल्सो applicability of cost record is there. The regulated sector or what? Unregulated sector engaged in the production of specific goods or providing services. Overall turnover from its products and services should be greater than equals to 35 crores. Now the question arises, sir, ये चेक कब करना है? ये चेक करना है अपने को preceding financial year में.
तो if I want to know that कि whether my sugar industry is going to go and prepare the cost records from this year or not, what is the financial year going on right now? 22 23. तो 21 22 की P&L में जो audited P&L statement and trading statement, there I will check my which details? Turnover details. And if there the turnover is greater than equals to what? Last year how much? 35 crore. So this year onwards I have to start preparing the which records? But again telling you, cost records does not mean cost audit. Cost audit के separate rules है. तो right now we have completed our rule number 3. तो क्या बोलता है rule number 3? Repeat again. Rule number 3 says that there are 39 industries divided into regulated and unregulated. But let it be you are a part of regulated or let it be you are a part of unregulated. If your turnover is greater than equals to 35 crores, you have to start preparing the which records? But if you are a SME, then cost records are not applicable to you. Either you are SME from regulated or you are an SME from unregulated. ठीक है? अब ये आ गया अपना कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट. इसको मैं इजी वे में बता देता हूं कैसे करना है इसे. अब अपन इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. वन इज नोन एज रेगुलेटेड सेक्टर एंड वन इज नोन एज व्हाट? अनरेगुलेटेड सेक्टर. अब देखो रेगुलेटेड सेक्टर को अपन कैटेगरी ए बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल देम एज? कैटेगरी ए. अनरेगुलेटेड सेक्टर को अपन कैटेगरी बी. डोंट राइट इट, आई विल मेक यू राइट प्रॉपर्ली. पहले समझ लो. रेगुलेटेड सेक्टर में 6 इंडस्ट्रीज विल कम एंड हियर 33 इंडस्ट्रीज विल कम. पहले अपन उसका नाम पढ़ेंगे. व्हाट आर द 6 इंडस्ट्रीज एंड 33 इंडस्ट्रीज? कहां पे दिया हुआ? हाँ वही स्टेप ये रहा. ये देखो ये है अपना विच सेक्टर एवरीवन? रेगुलेटेड सेक्टर. द स्टेप में टी आई टोल्ड यू. व्हाट इज टी? टेलीकॉम सर्विसेज. फिर मैंने तुम्हें ये बताया जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टेप में टी एंड डी आ गया. पी स्टैंड्स फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ठीक है. एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्रग्स एंड फार्मा. एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलाइजर्स एंड एस स्टैंड्स फॉर. अब अपने को कॉन्सेंट्रेट सिर्फ 6 पे करना है. रिमेनिंग एवरीथिंग इज व्हाट? अनरेगुलेटेड सेक्टर. अब अनरेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आयरन एंड स्टील, टर्बो इंजन्स, हॉस्पिटल्स, ऑयल्स एंड मिनरल्स, सीमेंट, ये सब किस में आता है? एक बार पढ़ लो. जस्ट गो थ्रू द लिस्ट. व्हाट इज द लिस्ट? Machineries and mechanical appliances, turbojets and turbo propellers, arms and ammunitions and मतलब टैंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉल्ड भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. ये सब अनरेगुलेटेड सेक्टर में आती हैं. अब देखो पहले इनके रेगुलेटर देखो. मेरे को बताओ टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? ट्राई, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो दीज आर दो सेक्टर्स जिसके लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटर्स बनाए हुए हैं. आर यू गेटिंग? एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं. जैसे अपना टीएसपी डीसीएल है. वी गेट अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम देयर. व्हाट इज द थर्ड सेक्टर एवरीवन? पेट्रोलियम. पेट्रोलियम सेक्टर का रेगुलेटर है ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड. ठीक है. फिर अपना आ गया ड्रग्स एंड फार्मा. ये तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. फर्टिलाइजर्स, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए फर्टिलाइजर सेक्टर भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है बिकॉज दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? शुगर एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल. क्योंकि ये सारे बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स में आते हैं. अल्कोहल वो वाला अल्कोहल नहीं, नहीं नहीं वो वाला अल्कोहल नहीं. इट इज दैट अल्कोहल विच इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल पर्पस. जैसे मेडिसिन में भी यूज होता है, बहुत सारी प्लेसेस पे यूज होता है. तो इसे आप हमेशा याद रख लो. स्टेप फादर एंड डॉटर. ठीक है. तो एस में क्या होगा? शुगर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, फार्मा, फर्टिलाइजर. नहीं, पी स्टैंड्स फॉर पेट्रोलियम, एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलाइजर, डी स्टैंड्स फॉर ड्रग्स एंड फार्मा. तो आप हमेशा ऐसे याद करो. तो इफ यू नो द 6, रिमेनिंग एवरीथिंग इज व्हाट? अनरेगुलेटेड. अनरेगुलेटेड की लिस्ट बहुत लंबी है. दैट्स व्हाई वी नीड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. जैसे प्रोपेलेंट पाउडर हो गया, रेडार. रेडार मालूम है क्या होते हैं? रेडार्स बाय विच यू कैच इन द एयर कि विच प्लेन्स आर नियर टू योर प्लेन. जैसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल में वो यूज करते हैं ना, वो डॉट्स आते हैं ग्रीन कलर के. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड रेडार्स. मैन्युफैक्चरिंग आल्सो कम्स अंडर द अनरेगुलेटेड सेक्टर. नेक्स्ट वन, टैंक्स एंड आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स, पोर्ट सर्विसेज, देन एरोनॉटिकल सर्विसेज जो एयरप्लेन के इंजन्स बनाती है उनको. नेक्स्ट, आयरन एंड स्टील, रोड एंड अदर इंफ्रा, रबर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, कॉफी एंड टी, रेलवे, ट्रामवे, लोकोमोटिव, सीमेंट, ores and minerals products, mineral fuels, base metals, inorganic chemicals, jute and jute products, edible oil, construction industry,
health services, and then educational services, milk powder, insecticides, plastics and polymers, tires and tubes, pulps and paper, textile, glass, other plant and machinery, then electricals and electronic machinery, और ये आगे अपने hospital equipments जो हार्ट में स्टंट्स डलते हैं या इन द लाइक पार्किंसन डिजीज में रिमोट कंट्रोल्ड हार्ट डलता है, आर्टिफिशियल आर्टरीज डलती हैं, all that comes under the last industry. So they all are which sectors? Unregulated sector. Now there comes the main point. Ki sir, what is the point of reading this? The point of reading this is you should know now ki what is the limit of cost audit in case of which sector? Regulated sector. And what is the limit of cost audit in case of unregulated sector? देखो यहाँ पे दो लिमिट्स है एंड दोनों के बीच में एंड है, मतलब both the conditions are required to be satisfied. First of all, annual turnover should be greater than equals to 50 crores, and here your annual turnover should be greater than equals to 100 crores. अगर आप लिस्ट ए कैटेगरी और regulated sector में हो and your annual turnover of the production of goods and services is greater than equals to 50 crores and the turnover from such goods and services for which cost records are required, that should also be greater than equals to 25 crores, and here the same limit is 35 crores or more. बहुत सिंपल वे में बताता हूं इसका मीनिंग क्या है. मान लो अपन वाइजेक स्टील प्लांट का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है. मैंने वाइजेक स्टील प्लांट के ओनर को पूछा, मैंने कहा सर आपका टर्नओवर कितना, उन्होंने बोल रहा है 200 crores. अब मेरे को ये बताओ, either Vizag is a regulated sector or unregulated sector. Condition मैं पूछ रहा हूँ कि if it is regulated or unregulated, but please tell me in both the cases condition number one on both the side is matched. What is the annual turnover required? 50 crores or more or 100 crores. But that is not the only condition you have to check. We have to check the two condition. फिर मैं उससे ये पूछूंगा कि सर ये 200 crores का जो आपका टर्नओवर है, that is from how did you like reach to this turnover? So he told me, sir, we manufacture 10 items. How many items? 10 items. Just an example, hypothetically. मैंने पूछा सर कौन कौन से 10 items? उन्होंने बोल रहा है 8 items are those items for which cost records are not required. ये वो वाली items है जिसके ऊपर cost records गवर्नमेंट ने allow नहीं किया. And there are 2 items we manufacture on which cost records are required. अब मेरे को जो सेकंड कंडीशन है ना, वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है. मैंने पूछा सर ओके दीज 8 आइटम्स आर गिविंग यू हाउ मच टर्नओवर, तो उन्होंने बोला ये जो 8 आइटम्स हैं वो मेरे को 180 करोड़ का टर्नओवर दे रही है, और ये जो 2 आइटम्स हैं वो मेरे को सिर्फ और सिर्फ कितना टर्नओवर. अब मेरे को ये बताओ, कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टर्नओवर इज हाउ मच इन वाइजैक? 20 और 180? 20. But we need the second condition to be fulfilled greater than equals to, ये कंपनी के ऊपर ऑडिट नहीं होगा. अब समझ में आया? तो नॉट ओनली योर एनुअल टर्नओवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 crores, वो एनुअल टर्नओवर में दैट टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड, दैट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 crores. तो इसके लिए वाइजैक का ये ऑडिट नहीं होगा. अब मैंने उनका नेक्स्ट ईयर ऑडिट किया तो पता चला ये 170 और 30 है. अब बताओ, कॉस्ट नॉन कॉस्ट रिकॉर्ड टर्नओवर इज 170 एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाला आइटम का टर्नओवर इज 30. अब बताओ नेक्स्ट ईयर ऑडिट होगा? होगा. एक तो 50 crores और मोर हो गया, और ऊपर से एनुअल टर्नओवर फ्रॉम सच गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड, दैट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाउ मेनी crores? 25 crore. तो इस केस में ऑडिट विल टेक प्लेस, इस केस में ऑडिट विल नॉट टेक प्लेस. दैट इज द रीजन वी अंडरस्टूड कि कॉस्ट ऑडिट इज नॉट अ रेगुलर एंड पीरियोडिकल एंड ईयरली ऑडिट. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द पॉइंट? यहां तक सबको समझ में आया? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज टेल मी व्हाट इफ दिस वाइजैक नाउ बिलोंग्स टू बी कैटेगरी. अब बताओ, इन द केस नंबर 1 ऑडिट और नो ऑडिट, in the case number 2 also no audit. Why? क्योंकि अपनी 100 वाली कंडीशन तो मैच हो गई, बट ये वाली कंडीशन इज मैच्ड और नॉट मैच्ड. एंड विल योर आंसर चेंज इफ इट इज 160 and 40 नाउ? यस. अब समझ में आया?
तो जब हम लोग कॉस्ट ऑडिट करते हैं ना, सिंपल ये नहीं होता मुंह उठा के क्लाइंट के पास चले गए और उनको बोल दिया चलो चलो तुम्हारा कॉस्ट ऑडिट करेंगे। पहले अपने फिगर्स चेक करेंगे टर्नओवर की, उसको पूछेंगे हाउ मच इज CRA1 टर्नओवर एंड हाउ मच इज नॉन कॉस्ट रिकॉर्ड्स टर्नओवर। उसके बाद अपन दोनों कंडीशन मैच करेंगे, ओवरऑल पहले मैच करेंगे एंड ओवरऑल के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाला टर्नओवर आल्सो वी शुड मैच। तो लिस्ट ए कैटेगरी रेगुलेटेड सेक्टर के व्हाट आर द टू कंडीशंस? हाउ मच शुड बी एनुअल टर्नओवर? 50 crores or more. That is very easy to match. But what is the second point? Out of the total turnover, cost record based goods and services turnover should also be greater than equals to 25. तो both the conditions के अंदर and है, that's why both the conditions to be satisfied. And on the other side list B में 100 crores or more and 35 crores or more. This is how the cost audit is being determined कि whether on particular entity cost audit will take place or will not take place. That is the reason you should know what is regulated sector and what is unregulated. अब मान लो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि एक शुगर इंडस्ट्री है, उसका एनुअल टर्नओवर 45 करोड़ है और कॉस्ट रिकॉर्ड्स का टर्नओवर 35 है। एनुअल 45 है, क्यों? बट मेरा एक और क्वेश्चन है, वेदर दिस कंपनी हैज टू प्रोड्यूस कॉस्ट रिकॉर्ड्स? इसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स कंपलसरी है? यस, इट हैज टू बी अ cost records. But what if this sugar industry is an SME? Cost records required or not required? तो भैया जब cost records ही नहीं है तो cost audit ही नहीं होगा। Did you get the point? What if this is not an SME and annual turnover is 45 and cost records turnover is 25? Now cost audit or no cost audit? But will your answer change if its annual turnover is 65 crores and cost records turnover is 25 crores? Cost records turnover is 25, annual is 65. तो 65 में से 25 coming from those goods and services which are cost record based. Now tell me, audit required or not required? Required. Will your answer change if it is a list B category pharma? Suppose it is iron and steel company. अब बताओ, तो एग्जाम जब आएगा ना, 5 से 6 चीजें तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए। पहले तो ये रेगुलेटेड सेक्टर है या अनरेगुलेटेड? Are they talking about cost records or they are talking about cost audit? And then regulated sector में what is the turnover limit? Annual turnover greater than equals to 50 crores and cost records turnover greater than equals to, और unregulated sector में annual turnover should be greater than equals to 100 crores. Cost record based turnover should be greater than equals to. So all these things you should know when you are doing the audit when you are doing the question relating to cost audit. यहाँ तक समझ में आया? So that is what I wanted to tell you. इसे अपन डिटेल में करेंगे when we'll reach to this cost records chapter ना, फिर से उसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ तो वी आर ओनली डूइंग सेक्शन नंबर 148. तो ये हो गया अपना रूल नंबर 3. अब तुम मुझे बताओ व्हाट शुड आई राइट इन रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. व्हाट आर द टू सेक्टर्स एवरीवन? एक होता है रेगुलेटेड सेक्टर, लेकिन अपन इसे रेगुलेटर सेक्टर से ज्यादा क्या प्रिटेंड करेंगे, इसे बोलेंगे कैटेगरी ए. व्हाट डू वी कॉल इट एज? कैटेगरी ए इंडस्ट्री. एंड हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर? 6. नेम देम प्लीज. स्टेप फादर एंड डॉटर, शुगर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, ड्रग्स एंड फार्मा. ठीक है. अदर वे अराउंड आएगा अनरेगुलेटेड सेक्टर. Unregulated sector means category B. So it is a B category and along with that how many industries? 33 industries. ठीक है. and इसमें remaining आएंगे. अब बताओ फर्स्ट कंडीशन क्या थी रेगुलेटेड सेक्टर का? एनुअल. अब मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से लगाता हूं व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन. एनुअल टर्नओवर फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ goods and services should be greater than equals to 50 crores and turnover of such goods and services for which cost records are to be maintained shall also be greater than equals to 25 crores. ठीक है.
And on the other side, if it is condition number 1, then annual turnover from production of goods and services should be greater than equals to 100 crores, and turnover from such goods and services for which cost records are required should be greater than equals to 35 crores. This is called audit rules. That was called cost records rules. Rule number 3 and rule number 4 is over. तो इसका मतलब 148 में out of 6 rules, 2 rules we have already discussed. One is rule 3 and one is rule number 4. कोई डाउट है तो पूछ लो सर. Any doubt if you have, please. Yeah. किसमें? हाँ, प्रीवियस ईयर टर्नओवर, क्योंकि ऑडिट हमेशा असेसमेंट ईयर में होता है. हम लोग when the audit starts, anybody is having an idea? Audit starts when the accounting ends. ये हमेशा रूल याद रखना. और अपने को मतलब ये टर्नओवर पिछले साल का ही चाहिए. तो every financial year audit takes place in its what? Assessment year. That is a rule, right? Be it cost audit, be it financial audit, be it any audit. हम लोग कभी भी क्लाइंट को इंटरफेयर नहीं करते ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए ऑडिटिंग स्टार्ट्स व्हेन व्हाट एंड्स? अकाउंटिंग एंड्स, राइट? तो वी, यस, हाँ, देयर आर टोटल 6 इंडस्ट्रीज. 6 इंडस्ट्रीज का मतलब, बट आई डिडंट नेम द इंडस्ट्रीज. आई टोल्ड दैट इंडस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, माइनिंग, सर्विस, एक्सट्रैक्शन and assembling and processing. Let me give you a very simple example also. Let's say for example इंडिया में एक फैक्ट्री है चेन्नई में, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री. तुम्हें क्या लगता है आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है? नहीं, उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में. इंडिया जस्ट इंपोर्ट्स द पार्ट्स एंड यहां पे आके क्या करता है? असेंबलिंग. असेंबली के लिए भी तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, and for the assembling also you need what? Labor. So that makes it a cost audit compliance. Did you get the point? So major core is not the industry. Major core is what you are using is raw material and labor. अगर आपने दोनों चीजें यूज करी हैं तो then you fall under the cost records. नहीं 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 नहीं, these are not 6 regulated industries. This is a general answer. अब iron and steel also is a manufacturing, but iron and steel comes under what? Unregulated sector. Cement comes under what? Unregulated. Jute products comes under what? Unregulated. I have never told you that these are the 6 regulated. I am saying companies involved in these activities are further classified into regulated sector and unregulated. So these 6 are not regulated sector wala 6 industries. Regulated sector mein I told you specially the name. What are the 6 names I told you? Sugar, telecom, electricity, petroleum, drugs and fertilizers. Drugs and pharma and fertilizers. We have to start maintaining the cost records. Yes. Hmm. Cost records. Huh. Less than 25. Annual turnover is how much? Okay. Mm-hmm. Okay. Huh. That is overall turnover. That is not cost records turnover. 35. Overall turnover. The moment your total turnover is 35 crores or more, you have to start preparing the cost records. But in the overall turnover, if those goods and services for which cost records are required, that turnover is greater than equals to 25 crores, then the cost audit will become compulsory. That's why in the beginning only I told you, cost records का limit is different and cost audit का limit is different. ठीक है? Okay, anybody is having a doubt relating to turnover like he had? No problem. It is natural that कि cost audit में बहुत सारी complexities होती है. So yes, you may sometimes get what? Confused. Did you get the point? First of all, confusion number 1 which you will get,
when you will prepare on your own, that manufacturing, production, assembling word which I made you write 6, they are not regulated industries. That's a general statement. And the second thing, cost records are not based upon cost records goods and services. Cost records is based upon total turnover. Did you get the point? But cost audit is based upon cost record based goods and services. तो कभी भी अच्छा मैं तुम्हें एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, एक पूरा क्वेश्चन का आंसर देना. डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी having a turnover of 104 crores, and out of the 115 vaccinations they are producing, there are 25 vaccinations for which cost records are required, and that turnover is 34 crores. Did you understand the question? Dr. Reddy Laboratory का total turnover कितना है? 104. They produce 115 vaccinations, different vaccinations. There are out of 115, there are 25 vaccinations for which cost records are required to be maintained. And that turnover from those 25 vaccination is 34 crores. Cost audit required or not required? Pakka required. क्यों required? Not required. एक सेकेंड, आप बताओ आंसर. हाँ, रेगुलेटेड है तो अपनी कंडीशन ही चेंज होगी. क्या है? 50 and 25. Are you getting the point? 50 and 25. अगर यही बोल दूं, if Dr. Reddy Laboratory is involved in jute and jute products, not in pharma, there is a Reddy's Infrastructure Limited company which is involved in jute and jute products. अब बताओ. Now 104 first condition matched, but what is the second? That is the main reason it is not a yearly and regular audit. एक साल मैच होगा, एक साल नहीं मैच होगा, क्योंकि turnover fluctuates every year, sometimes high, sometimes low. Did you get the point? That makes it a periodical or non-periodical audit? Non-periodic. I hope everything is sorted now. 100% understood. Let's move to the next point. Point number, this was point number 5. Okay, point number 6. अब इसको ध्यान से सुनना. Point number 6 में sir, what cost auditor considers? What cost auditor considers while doing the cost audit? बहुत सिंपल वे में बताऊंगा. Try to understand it. Let me do the comparative mode. Let's put the financial audit on one side and cost audit on another side. Try to understand it. Financial audit obviously a practicing CA will do, और cost audit obviously a practicing CMA will do. दोनों का approach same होता है, but they follow different things. When you are a practicing CA and you are doing the financial audit, you will check that कि management's financial statements are prepared as per AS. What is AS? Accounting standard. यहाँ पे आप क्या करते हो कि management's cost of productions must be as per CAS. What is CAS? Cost accounting standard. यहाँ पे auditors standards are known as what? SAs. हम लोग उसे standards on auditing बोलते हैं. यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? Auditors standards are known as CAAS. What is the full form? Cost Auditing and Assurance Standard. यहाँ पे ऑडिटर क्या वेरीफाई करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर GAAP, जनरली एक्सेप्टेड एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. यहाँ पे ऑडिटर चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर GAAP. व्हाट इज GAAP? जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल. दोनों का अप्रोच सेम है, लेकिन उनका वे ऑफ डूइंग द ऑडिट इज डिफरेंट. मतलब अगर अपन एक कॉस्ट शीट को देखें, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी कॉस्ट शीट? सेलिंग प्राइस. हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस. उसके ऊपर क्या होता है? मार्जिन. उसके ऊपर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये वाला हिस्सा कॉस्ट ऑडिटर का है और नीचे वाला हिस्सा किसका है? फाइनेंशियल ऑडिटर. ये दोनों में डिफरेंस है. तो वाइजैक के फाइनेंशियल एस्पेक्ट कौन वेरीफाई करेगा? CA. और उसके कॉस्टिंग इंपैक्ट्स कौन वेरीफाई करेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जेन्युइन है या नहीं, कहां पे ओवर कॉस्टिंग हो रही है, कहां पे अंडर कॉस्टिंग, प्राइम, फैक्ट्री, ओवरहेड, ये सब कॉस्ट ऑडिटर का लुकआउट है. और अपना लुकआउट क्या है ऐसा फाइनेंशियल ऑडिटर? ओनली ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट. दैट्स इट. ये दोनों में डिवाइड किया जाता है. दैट्स हाउ द वाइजैक स्टील प्लांट कैरीज आउट इट्स ऑडिट, बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज व्हाट. तो व्हाट डज द कॉस्ट ऑडिटर कंसिडर? यू जस्ट हैव टू कीप in mind this part.
Who does the cost audit? It's better to use this word always. Only who? Practicing CMA. तो मैनेजमेंट्स का प्रिपरेशन ऑफ अच्छा मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कौन से स्टैंडर्ड यूज होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ऑडिटर कौन से स्टैंडर्ड यूज करता है? कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड. अच्छा ये बताओ, ये CAS और CAS में डिफरेंस क्या है? हु फॉलोज व्हाट? मैनेजमेंट फॉलोज CAS, ऑडिटर फॉलोज CAS टू टेस्ट देयर CAS कि आपने CAS अच्छे से फॉलो करे या नहीं. उसके लिए मेरे पास मेरे 4 स्टैंडर्ड CAAS, सिंपल. एंड आई also like to know that कि whether your cost statements, cost records are prepared as per what GAAP or not, generally accepted cost accounting. These are the major differences between the cost auditor and financial. ये सब 148 में लिखा हुआ है. Read the 7th point. What a cost auditor can't perform. Can anybody tell me? If you are a cost auditor of one company, what things you are not allowed to do? You cannot be the statutory auditor. You cannot be the GST auditor of the same company. आप वही कंपनी का टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते. You can't be the tax auditor of the same company, and you can't do the internal audit of the same company. I'm not saying any other company, I'm saying same company. आप एक कंपनी में 2 रोल प्ले नहीं कर सकते. तो इफ यू आर ऑलरेडी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर इन वन कंपनी, आप उस कंपनी का स्टैट नहीं कर सकते, GST नहीं कर सकते, टैक्स नहीं कर सकते, एंड यू आर नॉट अलाउड टू बी द कंपनीज व्हाट इंटरनल. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वाला जो पार्ट है GST वाला, ये एक्चुअली अबॉलिश हो चुका है. देयर इज नो सच ऑडिट कॉल्ड GST ऑडिट एनी लॉन्गर इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स. ठीक है, मे बी 23 में वापस आने वाला है, बट प्रेजेंटली देयर इज नो GST ऑडिट इन इंडिया. होता था, क्योंकि क्या हुआ, इंडिया में GST ऑडिट में बहुत सारे मैनिपुलेशंस होने शुरू हो गए. प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेल्पिंग द क्लाइंट्स इन मैनिपुलेटिंग द GST फॉर द अंडर पेमेंट ऑफ टैक्सेस. तो गवर्नमेंट ने GST ऑडिट ही निकाल दिया. डायरेक्टली ओनली रिकंसिलेशन यू डू. आई थिंक रौनक सर माइट हैव टोल्ड यू अबाउट दैट GST ऑडिट के बारे में. डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कौन पढ़ा रहा आपको? चंद्रशेखर सर. तो ही विल टेल यू. तो GST ऑडिट इज नॉट, बट आप एग्जाम में लिख के आओगे. क्यों? क्योंकि योर मटेरियल इज नॉट येट अपडेटेड. तो GST ऑडिट इज ऑलरेडी abolished because at the end of the day your papers will be examined by institute. So don't try to be over clever in your examination just because you know you will not write it. You will write it till the time ICMA does not remove it from its material. आपको लिख के आना. Did you get the point? So what are the 4 things you can't do? You can't do the statutory audit, GST audit, tax audit and internal audit. 8th point. Who appoints the cost auditor? इसमें अपन 3-4 चीजें पढ़ेंगे. Who appoints the cost auditor? What are the qualifications and disqualifications of the cost auditor? And what is the completion period of cost audit? And one more point, intimation. Q&D is qualifications and disqualifications. तो who appoints the cost auditor? First point अपन start करेंगे appointment से. I hope you are comfortable with the language which I am making you right. Easy लग रहा है अभी इस फॉर्मेट में. Appointment. Always remember, cost auditor is never appointed by shareholders. He is always appointed by board of directors within 180 days from the commencement of financial year. Last वाला is intimation, completion period, qualification and disqualification, and who appoints. So appointment is always made by board of directors within 180 days from the commencement of financial year. तो अगर मैं आपसे एक gradually question पूछूं, which financial year is going on right now? और मान लो मेरी कंपनी के ऊपर कॉस्ट ऑडिट होने का है, तो मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स when they must appoint by hook or by crook cost auditor. By what date cost auditor must have been appointed for 22-23 financial year? पहले रूल सुन लो. ऑडिटर को हम लोग एडवांस में अपॉइंट करते हैं, बट ही स्टार्ट्स डूइंग द ऑडिट एट द लेटर स्टेज, क्योंकि ऑडिटर नीड्स अ प्लानिंग टाइम. विच टाइम?
अब जैसे मान लो आपको मैं अगर वाइजैक स्टील प्लांट का ऑडिटर बना देता हूं टुडे, आर यू गोइंग टू डू द ऑडिट टुमारो? नो. पॉइंट नंबर वन, ऑडिटिंग स्टार्ट्स व्हेन व्हाट एंड्स? 22-23 कब खत्म होगा? 31 मार्च को. तो इसका मतलब ऑडिट टाइम पीरियड है अप्रैल से. बट उस टाइम पे हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे. ऑडिट को कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ही अपॉइंट कर देंगे. विद इन हाउ मेनी डेज? 180 डेज. मतलब बाय 30th September 2022 कॉस्ट ऑडिटर मस्ट हैव बीन व्हाट अपॉइंटेड. मैं 6 मंथ्स लेके चल रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली 180 डेज. अगर अपन एग्जैक्टली 180 डेज लगाएं तो 29 सितंबर आता है आंसर. डिड यू गेट द पॉइंट? तो मतलब सितंबर मंथ से पहले पहले आपका कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए. सर वो सितंबर से लेके मार्च तक क्या करेगा? वो प्लानिंग करेगा, स्ट्रेटेजाइज करेगा. ही विल एक्वायर द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, एनवायरमेंट नॉलेज. और जैसे ही अप्रैल मंथ आएगा ही विल स्टार्ट डूइंग द विच ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट. तो ये हो गया अपॉइंटमेंट टाइम. अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से. सर हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल कम टू नो कि वी हैव अपॉइंटेड अ विच ऑडिटर? कॉस्ट ऑडिटर. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर अपॉइंटमेंट, board of directors after appointment of cost auditor shall intimate central government in form number CRA2 within 30 days. टोटल अपने को 4 फॉर्म्स है. आई टोल्ड यू दिस इज CRA2 फॉर्म. तो सर CRA1 क्या है? CRA1 है कॉस्ट रिकॉर्ड्स. व्हाट इज CRA1? कॉस्ट रिकॉर्ड्स. तो आपको कौन सी कंपनी को कौन से कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने हैं वो CRA1 में लिखे हुए हैं. CRA2 क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर रहे हैं कि हमने अपना क्या अपॉइंट कर लिया? कॉस्ट ऑडिटर. विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट दिस CRA2 फॉर्म शुड रीच टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है उसे लेटर भेजना पड़ेगा CRA2 के साथ कि हमने अपना कॉस्ट, ये उसकी डिटेल है. डिड यू गेट द पॉइंट? नाउ व्हाट इफ द कॉस्ट ऑडिटर, व्हाट इफ द कॉस्ट ऑडिटर resigns or died or removed? आपके कॉस्ट ऑडिटर के साथ ये भी हो सकता है कि मान लो कॉस्ट ऑडिटर डिड नॉट लाइक द कंपनी तो ही रिजाइन. ठीक है, उसकी डेथ हो गई या ही गॉट व्हाट रिमूव, कंपनी रिमूव्ड हिम. इन दिस केस अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall अपॉइंट कैजुअल वैकेंसी कॉस्ट ऑडिटर. उस कॉस्ट ऑडिटर को अपन ओरिजिनल कॉस्ट ऑडिटर नहीं बोलते, हम लोग उसे कैजुअल वैकेंसी कॉस्ट ऑडिटर बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल वैकेंसी? वाज ही द फर्स्ट वन टू whom we appointed or he came in place of somebody? तो उससे हम लोग कैजुअल वैकेंसी कॉस्ट ऑडिटर बोलते हैं. एंड अगेन यू हैव टू सेंड द CRA2 फॉर्म टू whom? सेंट्रल गवर्नमेंट. विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज के अंदर. तो CRA2 सर्व्स योर टू पर्पस. वन इज फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट एंड वन इज सेकेंड टाइम अपॉइंटमेंट. ठीक है, फॉर्म नंबर विल रिमेन सेम. तो अगर आपके कॉस्ट ऑडिटर रिजाइन होता है, डाइड होता है, रिमूव्ड होता है, तो अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट द न्यू कॉस्ट ऑडिटर एंड अगेन इंटीमेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर CRA2. टाइम पीरियड विल रिमेन सेम. विद इन हाउ मेनी डेज? ये सारे रूल्स आपको MCQ में आएंगे. सेक्शन नंबर 148 में इतने रूल्स हैं कि योर टोटल 30 मार्क्स ऑफ MCQ कैन कम इन दिस सेक्शन ओनली. इतने सारे टाइम पीरियड्स है. यहां तक समझ में आया? अब अपन टाइम करेंगे सर इसका कंप्लीशन टाइम. अच्छा, इसका अपॉइंटमेंट टाइम बताना. विद इन हाउ मेनी डेज? बाय हुम? 180 डेज. कहां से? तो इसका टाइम पीरियड, कंप्लीशन टाइम पीरियड भी सेम है. विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मतलब आपने 30 सितंबर 2022 को कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया. यू अपॉइंटेड कॉस्ट ऑडिटर बाय 30 सितंबर. ही इज वेटिंग फॉर 31 मार्च. अप्रैल 1 से ही विल स्टार्ट हिज व्हाट? ऑडिट. बाय 30 सितंबर 2023 his audit must be completed. So this is a time frame.
Government only gives you 180 days to do the which audit? Cost audit. So you will be appointed within 180 days from the commencement of financial year, and you are completing the audit within 180 days from the end of the financial year. Did you get the point? ठीक है, तो यहाँ पे भी time period will remain same. अब now obviously after completion, who will send the cost audit report? Cost auditor. To whom? Board of directors. So after completion, cost auditor shall forward cost audit report. अब इसका जो फॉर्म नंबर है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म नंबर इज CRA3. इन फॉर्म नंबर CRA3 to board of directors along with modifications and reservations. Anybody knows the meaning of modification reservations? मतलब मेरे को कई चीजों में I had a problem while doing your audit, so I want you to modify those things, and I have kept some negative remarks on some areas which I didn't like in the organization. So yes, auditor has every right to give the modified and adverse remarks on the company. सर मैंने जानबूझ के लिखा, क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ. अब क्या होता है, जैसे once the board of directors after receiving cost audit report, cost audit report within 30 days of its receipt. Anybody knows what is the further step? बोर्ड क्या करेगा? जैसे आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलती है 30 डेज के अंदर बोर्ड को दो चीजें करनी है. व्हाट आर द टू थिंग्स? पास कमेंट्स ऑन मॉडिफिकेशंस and reservations and adverse remarks kept by cost auditor. Obviously, central government would not only like to see what are the negatives in the company. Central government would also like to know what board has to say on that. Why board did not improvise on it. The board of directors will pass the comments on modified, reserved and adverse remarks kept by the cost auditor and forward the cost audit report plus comments to central government in CRA4. तो आप CRA4 को डाउनलोड करोगे, उसको फिलअप करोगे, ऑडिट रिपोर्ट अटैच करोगे, अपने कमेंट्स अटैच करोगे, किसको फॉरवर्ड करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो अभी 1 2 3 4 फॉर्म नंबर्स आपको पता है. CRA1, 2, 3 and 4. What is CRA1? Cost records. CRA2, intimating about the which auditor? Cost auditor. To whom? Central government. Right? Again, CRA2 is also used for the casual vacancy cost auditor. And CRA3 is your cost audit report का format है. और CRA4 है जब बोर्ड अपना comments plus report दोनों किसको forward करता है? Central government को. और ये सब कुछ within 30 days होने जाना चाहिए. Receipt, commenting and forwarding, all that thing should be done by the board within how many days? अब यहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है, उसको अपन पढ़ लेंगे. आई डोंट नो वेदर, अच्छा आपने लॉ में 137 सेक्शन किया? लॉ के पोर्शन में 137 सेक्शन, कुछ आइडिया? नहीं आइडिया? मैं करवा देता हूं, छोटा सा ही सेक्शन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यू कैन ओनली अंडरस्टैंड दिस अमेंडमेंट इफ यू नो द सेक्शन नंबर 137. पहले ध्यान से सुन लो. एजीएम पता है एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग. कौन करता है? कंपनी करती है. किसके लिए? दिस एजीएम इज अ बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर्स मीटिंग. शेयर होल्डर. एजीएम में क्या क्या होता है? डिविडेंड डिक्लेरेशन होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल. तो बेसिकली एजीएम इज अ ईयरली वंस मीटिंग विच इज कैरिड आउट फॉर ब्रिंगिंग द नॉलेज टू द शेयर होल्डर कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है.
दिस इज व्हाट द पर्पस बिहाइंड व्हाट एजीएम. बट एजीएम की एक्चुअल डेट होती है 30th सितंबर ऑफ एवरी ईयर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर साल 30th सितंबर को एजीएम होना जरूरी है. मतलब मैक्सिमम डेट होती है 30th सितंबर. अप्रैल 1st से लेके 30th सितंबर जैसे आपका ऑडिट कंप्लीट होता है उसके बाद क्या आती है? एजीएम. लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपकी एजीएम हो जाती है डिलेड, डिलेड मतलब पोस्टपोन हो जाती है, तो उस केस में अब सुनना ध्यान से, whatever the time period, whatever the extension ROC has given, read the sentence what I wrote, whatever the extension RO, मान लो हम लोग ROC के पास कंपनी गई, ROC को बोल रही है सर हमारा ऑडिट थोड़ा डिले हो रहा है, हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर डाइड and we had to appoint a new auditor, it took time, so that's why unfortunately we can't do the AGM on 30th September, we need extension. ROC आपको 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है, मैक्सिमम कितना? अप टू 3 मंथ्स. अब उस केस में क्या होता है, जितना एक्सटेंशन आरओसी आपको दे रहा है वो सेम एक्सटेंशन आप ये 30 डेज में ऐड करोगे. समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो आरओसी ने आपको 45 डेज का एक्सटेंशन दे दिया, 1.5 मंथ. आरओसी बोल रहा है चलो एक काम करो, आप ये 15 नवंबर तक मीटिंग खत्म कर दो. तो आरओसी ने आपको 45 डेज का एक्सटेंशन दे दिया. अब ये 45 डेज वो 30 डेज में जाके ऐड हो जाएंगे. तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट पास द कमेंट्स एंड मस्ट फॉरवर्ड द रिपोर्ट नाउ नो लॉन्गर इन 30 डेज, विद इन 75 डेज. नाउ हाउ मेनी डेज? तो ये जो यहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट क्या आया कि वट एवर द एक्सटेंशन यू आर गेटिंग हियर, एक्सटेंशन जो भी यहां पे मिल रहा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? आरओसी एक्सटेंशन के ऊपर. तो जितना आरओसी आपको एक्सटेंशन देगा वो सेम एक्सटेंशन आप 30 डेज में ऊपर सीआरए फोन पे ऐड कर दोगे. अब बताओ, आरओसी ने आपको 15 दिन का एक्सटेंशन दिया तो वो 45 हो जाएगा. आरओसी ने आपको 2.5 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे प्लस 30 डेज. तो दिस इज अ स्मॉल अमेंडमेंट. तो वट एवर द एक्सटेंशन आरओसी गेव फॉर एजीएम, the same extended time period will be added in the 30 days under the CRA 4. Did you get the point? This is what all about whom you should know, cost auditor. अब थोड़े से अपने miscellaneous topics बच गए, छोटे छोटे topics. What is that? कि sir, what about the powers? What about the duties? What about the rights? What about the qualifications? And what about the disqualifications of whom? Cost auditor. Same as statutory auditor. Same as which auditor? Statutory. जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को डिस्क्वालिफिकेशन है वही आपको है. यू शुड नॉट हैव अ फाइनेंशियल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, अदरवाइज यू मे कॉम्प्रोमाइज योर इंडिपेंडेंस. जो हम लोग कंपनी ऑडिट में सेक्शन नंबर 139 से लेके सेक्शन नंबर 147 पढ़ते हैं वो सेम सेक्शंस किसको एप्लीकेबल है? कॉस्ट ऑडिटर को भी. डिड यू गेट द पॉइंट? तो जो भी आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज फाइनेंशियल ऑडिटर को अवेलेबल है वो सेम राइट्स एंड ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर. बट यहां पे याद रखना है, रिमूवल कौन करता है आपका? हु कैन रिमूव यू? रिमूवल ओनली कैन बी डन बाय बीओडी. आपको अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो आपको रिमूव भी कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बट आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. क्या होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? कभी सुना है? क्या होता है अपॉर्चुनिटी? मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम आपको कि व्हाई वी आर रिमूविंग यू एंड यू आल्सो प्लीज गिव अस द एक्सप्लेनेशन कि व्हाई वी शुड नॉट रिमूव यू बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन. सर मैंने यहां पे आपको स्पेशली स्ट्रेस करके रिमूवल क्यों बताया? क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिटर का रिमूवल ऐसे नहीं होता. क्योंकि यू में कनेक्ट की जैसा स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिमूवल होता है वैसे ही कॉस्ट ऑडिटर का नहीं. फाइनेंशियल ऑडिटर का रिमूवल शेयर होल्डर करते हैं. कौन करते हैं? और बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. क्योंकि उसको अपॉइंट भी कौन करता है? शेयर होल्डर. कॉस्ट ऑडिटर को बोर्ड अपॉइंट करता है. दैट्स व्हाई हु विल रिमूव? बोर्ड. आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बट बाय पासिंग अ विच रेजोल्यूशन. शेयर होल्डर की परमिशन नहीं चाहिए क्योंकि शेयर होल्डर हैज नथिंग टू डू विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उनको सिर्फ डिविडेंड से मतलब है. वो फाइनेंशियल ऑडिटर का एस्पेक्ट है. डिड यू गेट द लॉजिक? समझ में आ रहा है हर जगह? So this is the reason I told you separately about what? Removal. अब एक चीज बच गई है वो है exemption under section 148.
अब ध्यान से सुनना, मैं रेगुलेटेड सेक्टर हूं, मैं अनरेगुलेटेड सेक्टर हूं, लिसन टू मी केयरफुली, आई एम अ विच सेक्टर, आइदर रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, बट इफ आई एम फॉलोइंग अंडर दीज 5 कैटेगरीज, आई एम exempted from cost audit. Category number 1, operating from SEZ. What is the full form? अगर मेरी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एस्टैब्लिश्ड है, मेरी फैक्ट्री वो जोन के अंदर आती है, तो मेरे ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा, इवन दो मेरा एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ हो जाए और मेरा कॉस्ट रिकॉर्ड्स टर्नओवर 600 करोड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, that is not possible. I am completely exempted from which audit? Cost audit. If my factory is operating from which zone? Special economic zone. Second point आपको पता ही है, SME. What is SME? Small and medium enterprise. तो आपके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं है तो कॉस्ट ऑडिट नहीं है. थर्ड है 100% EOU कंपनी. EOU सुना कभी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग. व्हाट इज 100%? तू क्या बोला? EOU नो क्या बोला? इक्विटी. चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं. इफ यू आर 100% EOU, अगर आप 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग हो, अच्छा इसको बेनिफिट क्यों दिया? पहले वाला चलो अपने को समझ में आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो गवर्नमेंट उनको बेनिफिट्स देती है. सेकंड वाला है SME है, छोटी है, बेनिफिट मिला. 100% EOU को क्यों बेनिफिट दिया? आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो, आप पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हो, और एक्सपोर्ट से आपकी जो रिसिप्ट होती है वो फॉरेन करेंसी में आती है. इसका मतलब आप कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंक्रीज कर रहे हो, इसलिए आपको यहां पे एग्जाम्पशन देगी. जब 100% EOU को एग्जाम्पशन दिया तो नॉर्मल एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू कर दिए, कहते जस्ट बिकॉज वी आर नॉट 100%, हमें कोई एग्जाम्पशन नहीं. तो गवर्नमेंट ने बोला तथास्तु, if you are more than 75% EOU also. What do you mean by that? अगर आपका टोटल टर्नओवर में more than 75% turnover is export, then in that case you will also get the exemption. But अगर 75% हुआ, no. तो मैंने greater than equals to नहीं डाला. What did it should be more than what? 75% EOU. और लास्ट वाला मिला, companies having its own पावर प्लांट. मतलब एक कंपनी है जिसने अपना पावर प्लांट बनाया है, एंड दे आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, दे आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब खुद जनरेट भी करते हैं पावर को और उसको यूज भी कर रहे हैं. फॉर विच पर्पस? फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. व्हाट इज द वर्ड यू हैव टू यूज? कैप्टिव. मतलब उनकी पूरी प्लांट एंड मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पूरा फैक्ट्री खुद की सेल्फ जनरेटेड पावर के ऊपर बेस्ड है. मतलब आपने अपने खुद के सोलर पैनल लगा लिए, इसका मतलब आर यू डिपेंडेंट अपॉन अ गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी और यू आर अ सेल्फ सफिशिएंट कंपनी? तो आपको एग्जाम्पशन दे रही है. अ कंपनी हैविंग इट्स ओन पावर प्लांट एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द पावर एज वेल एज व्हाट? यूजिंग द पावर, एंड दे आर यूजिंग इट फॉर विच कंजम्पशन? कैप्टिव. तो अगर आप ये 5 कैटेगरी की कंपनी हो तो आपको एग्जाम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 148. दैट नाउ रोल्स आउट योर सेक्शन नंबर 148. समझ में आया पूरा कॉस्ट ऑडिट? आई थिंक नाउ आपको ये भी पता कि कौन करता है, कैसे करता है, किसके ऊपर करता है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, कितने दिनों में रिपोर्ट देना है, कितने दिनों में गवर्नमेंट को भेजना है, एवरीथिंग यू नो. एक छोटा सा रिवीजन करते हैं. पॉइंट नंबर 1 बताओ, कॉस्ट ऑडिट का, कॉस्ट रिकॉर्ड्स रूल्स का टर्नओवर लिमिट क्या है, और रूल नंबर क्या है? रूल नंबर 3 which talks about cost audit or cost records. Your turnover has to be greater than equals to 35 crore. Cost audit rules कौन सा है? रूल नंबर 4 divided into regulated and unregulated. Regulated है तो total turnover 50 crores or more, and out of which cost records turnover should be 25 crores or more. और अगर आप लिस्ट बी में हो unregulated में, total turnover 100 crores or more और cost. सर एक बात याद रखना, आप ना CMA फाइनल में हो, आप जितना ज्यादा R&D करोगे ना अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उतने आपके लिए अच्छा है. फ्यूचर तुम्हारा जो बैच है ना, तुम्हारा बैच या प्रीवियस अपना 1-2 साल से और आने वाले 2-3 साल का जो ये बैच है ना, ये क्लस्टर ऑफ पीपल इंडिया के फर्स्ट सेट ऑफ सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग CMAs होंगे. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो
यहाँ वेस्ट करते हो। कोई भी सब्जेक्ट एग्जाम्स को क्लियर करने के सेक ऑफ से मत पढ़ो, ट्राई टू लर्न द सब्जेक्ट। हम लोग क्यों कर रहे हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए। एक बार तुम सीएमए क्वालिफाइड होगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें कोई भी लाइफ में कुछ भी टीच नहीं करेगा। यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स ऑन योर ओन। और अगर आपको सक्सेसफुल रहना है ना, तो यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ। तो कभी सीखना मत छोड़ना, नेवर लीव लर्निंग। मेरे पास टोटल 11 डिग्रीज है, और मेरे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल 12th डिग्री के एग्जाम मेरे जून में है। मैं हर साल अपने आप को एक डिग्री गिफ्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को इतना पता है कि फ्यूचर में अगर आपको वो लेवल पे पहुंचना है ना, अनसैचुरेटेड अमाउंट ऑफ मनी अगर आप अर्न करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ही पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं मेरा जो विजिटिंग कार्ड होता है ना, उसमें स्पेस होती है, वो स्पेस ही ना हो। लिखते जाओ ब्रैकेट में, आज सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, एलएलएम, एमबीए इन फाइनेंस, एमफिल इन फाइनेंस, तो एमबीए फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, उसके बाद ये अपना डीसा और फोरेंसिक ऑडिट का कोर्स, और अभी मेरा 12th वाला चल रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आपके पास ये डिग्रीज होनी चाहिए भाई। और मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं बैठता हूँ ना ऑफिस में, मेरे को किसी भी एंगल का ऑडिट दे दो, कैसा भी ऑडिट दे दो, कोई भी प्रोफेशन का चीज दे दो, सब कुछ आता है। मतलब मेरे ऑफिस में क्लाइंट आता है, बट खाली हाथ वापस नहीं जाता। समझ रहे हो? उसको कुछ तो बेचता हूं मैं। तो अगर आपको एक अच्छा टर्नओवर चाहिए, इफ यू रियली वांट टू लीड अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ, इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड द रिमेनिंग क्वालिफाइड पीपल, सीएमएस, मैंने सीएस ऐसे भी देखे जो मंथली 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख कमा के भी खुश है। अगर आपकी उतनी रिस्ट्रिक्शन है तो दैट इज व्हाट गुड व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन अगर आपको वो लेवल पे पहुंचना है, तो भैया आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। और आपके ऊपर तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि इंडिया में प्रैक्टिसिंग सीएमएस आर लाइक डायमंड, वेरी रेयर टू फाइंड। बहुत कम लोग आते हैं प्रैक्टिस में। 94% ऑफ द क्वालिफाइड पीपल गोज इनटू जॉब, सिर्फ 6% आप प्रैक्टिस में आते हो। सीए में 40% सीएस कम्स इन प्रैक्टिस, 60% गोज टू द जॉब। डिफरेंस देखो कहां पे। इसका मतलब तुम्हें पता ही है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, व्हेन देयर आर सोर्सेज आर वेरी स्केर्स, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी हायर, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? ऊपर। इसीलिए तो आपका पैकेज देखो पिछले 5 साल में, देखो ना, 7 lakhs एवरेज से आपका 11 to 12 lakhs एवरेज तक पहुंच गया। मतलब योर पैकेज इज बीटिंग द इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो कभी भी अगर ना आप सीएम में फाइनल में हो, अपना ये जो इंटरमीडिएट वाला एटीट्यूड है ना, उसको छोड़ दो। अभी अभी एक टाइम है आपको आपके करियर बिल्डिंग के ऊपर, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। जस्ट बैंग ऑन ऑल टू द अपॉर्चुनिटी। मैं तुम्हें सब्जेक्ट ऐसे रेडी करवा दूंगा कि हाँ, अगर आपको फ्यूचर में जॉब नहीं भी मिलती, आप प्रैक्टिसिंग सीएमए का ऑफिस डाल लेना, यू विल बी सक्सेसफुल। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्लाइंट सामने बैठता है ना, उस टाइम पे आपके माथे के ऊपर इंटेंजिबली लिखा हुआ है कि यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन। तब आप क्लाइंट को ये नहीं बोलते, सर एक सेकंड रुकना, मैं रोहित सर के नोट्स देख लूं, 148 रेगुलेटेड सेक्टर क्या था, अनरेगुलेटेड क्या था, 6 थे या 30। तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलता सर। समझ रहे हो? जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि 6 सेक्टर्स हैं, 39 सेक्टर्स है, 6 रेगुलेटेड, ये आपको लर्न करना है, सिर्फ मगअप नहीं करना है। समझना है क्यों गवर्नमेंट इनको क्यों करती है, कितना कर, डीप में जितना आर&डी कर सकते हो करो सब्जेक्ट की। और नॉट ओनली ऑडिट, एवरी सब्जेक्ट। क्योंकि 8 के 8 सब्जेक्ट्स आपको एक कंप्लीट सीएमए बनाएंगे। आपको काउंटिंग नॉलेज क्यों, हमारा अच्छा आपका नाम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, व्हाई नॉट ऑल द 8 सब्जेक्ट्स आर कॉस्टिंग? अगर आपका कोर कॉस्टिंग है, तो आपको सारे 8 के 8 सब्जेक्ट 8 लेवल्स ऑफ कॉस्टिंग कर देते ना। आपको अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ईएएस, डेटा एनालिटिक्स, फोरेंसिक, और ये क्यों पढ़ाया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन। क्योंकि हम लोग मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। कुछ पता नहीं चलता आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड आपका करियर किस में बनेगा। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू इंश्योर दैट कि वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर लर्निंग, डू इट 100%। थोड़ा सा सीरियसनेस चाहिए। आई कैन सी दैट मेरी क्लासेस में ना एक ही प्रॉब्लम होती है, जब मेरे को बच्चा सीरियस नहीं दिखता ना, मेरे को अंदर से प्रॉब्लम होती है कि वो, भाई मैं जब 100% दे रहा हूँ क्लास में, 200% एफर्ट मैं डालने को रेडी हूँ, और वो भी तुम्हारे बेनिफिट के लिए, मेरे को नहीं, मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, तुम्हें बनना है, मेरे को नहीं। तो व्हाई नॉट द थिंग्स कम्स फ्रॉम योर साइड। तो ये एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करो, एंड टेक इट एज अ ब्रदरली एडवाइस, यू विल डेफिनेटली फाइंड द डिफरेंस इन योर वे।
ठीक है ना। और ये लोगों को सुनना बंद करो, दोज हु विल कीप ऑन टेलिंग यू कि ये कोर्स एवरेज है, ये है, वो है, इतना ग्रोथ नहीं है। नहीं, आने वाले टाइम में मैक्सिमम ग्रोथ आपकी ही है। पहले बहुत होता था, लोग दोज पीपल हु वर डूइंग द सीएमएस, पीपल यूज्ड टू डिग्रेड देम। अरे यार सीएमए कर रहा है क्या, 3 साल में कंप्लीट हो जाते, ऐसा घंटा भी नहीं होता। देखो क्या रिजल्ट आते हैं, 12% 11% तुम्हें क्या लगता है रिमेनिंग 90% हु फेल दे डोंट नो हाउ टू compete और दे डोंट नो द सब्जेक्टिव नॉलेज? ऐसा नहीं होता। दे ऑल्सो नो दैट fight in the examination is never between the right answer and wrong answer, हमेशा याद रखना। it is always between the good answer and better answer। दोनों का आंसर राइट होता है, जिसको 40 मार्क मिलते हैं उसका भी आंसर राइट होता है, जिसको 80 मार्क्स मिलते हैं उसका भी आंसर राइट होता है। एक का गुड होता है, एक का बेस्ट होता है। समझ रहे हो? तो आपको दूसरी कैटेगरी में आना है, आपको इंप्रोवाइज करना है, लिखो ना, जो भी करना है करो, पढ़ो, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स बनाओ। तुम्हें मैं अपना ये आईपैड दिखा दूं ना, टोटल तुम्हें देखें 541 फाइल्स है। ये मैंने खुद से अपने हाथों से लिखता हूँ सारे नोट्स, देखो। और एवरी 6 मंथ्स 6000 पेजेस लिखता हूँ, एवरी 6 मंथ्स। क्यों? ये मेरे क्या हाथ नहीं दुखते? मेरे को ये होता है कि जब स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठा ना, वो 100% लेके जाए, नॉट पार्शियल। तो हर सब्जेक्ट में हर बार मैं नोट्स लिखता हूँ। हाँ, मैक्सिमम 1-2 अटेम्प्ट मैं स्किप करता हूँ इफ देर आर नो अमेंडमेंट। जैसे ही अमेंडमेंट आते हैं मैं नए नोट्स, अब जैसे आपका 2022 है, मेरे 2016 सिलेबस के सारे नोट्स यूजलेस हैं। नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली बोलता, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया 45-50 डेज का बैच, इस बार मिनिमम 60 डेज जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। हम लोग देने को रेडी है, यू शुड ऑल्सो बी इन अ पोजिशन टू डू द सेम। थोड़ा सा बस सीरियसनेस और थोड़ा सा और डेडिकेशन चाहिए, एल्स नथिंग, राइट? चलो, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। और कल अपन कंप्लीट करेंगे अदर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द कंपनी एक्ट विच आर आल्सो डीलिंग विद इन योर कंपनी ऑडिट सब्जेक्ट, ठीक है?